Hello, my dear student. This is your professor. Welcome back to the YPG classes. So today we are going to discuss about motion of charged particle in uniform magnetic field. There are three special cases. First one is parallel to the field. Second one is perpendicular to the field at any arbitrary angle to the field. That means whenever any charged particle enters to the magnetic field by making with its initial velocity parallel to the field and perpendicular to the field and by any arbitrary angle to the field, then in this three special cases, so what will be the amount of magnetic force? So we are going to discuss about this topic. Let's start करते हैं. So So actually, in previous lecture we have discussed about magnetic force. Okay, what is the magnetic force? Magnetic force actually indicated by F, which is the magnetic force indicated by F, which is directly proportional to the charged particle and also proportional to the magnetic field, and also it is proportional to the perpendicular component, velocity component of charged particle. That means अगर कोई भी एक magnetic field तुम imagine करोगे, cross and circle means magnetic field is entering perpendicularly to the plane of paper. So suppose it is uniform magnetic field. So charged particle कोई भी charged particle है जो initial velocity d लेके enter किया, so that means इसके ऊपर जो magnetic force एक्टिंग होगा उसका अमाउंट इसको वो डिपेंड करता है. इट इज चार्ज पार्टिकल, मैग्नेटिक फील्ड एंड वेलोसिटी कंपोनेंट वो डिपेंड करता है. बाय कंबाइनिंग दिस अबव थ्री वी कैन गेट एफ प्रोपोर्शनल टू क्यू वी बी साइन थीटा. अंडरस्टूड? So these are the basic dependency of magnetic force acting on charged particle. Okay, so now we are going to discuss about these three special topic: parallel to the field, perpendicular to the field, and at any arbitrary angle, say theta. So let's start. Okay, so इसको erase करता हूँ. So now solution start करते हैं. ठीक है, क्वेश्चन नंबर 1. So suppose कोई भी magnetic field. Okay, so magnetic field सपोज एक मैग्नेटिक फील्ड लिया जो पॉजिटिव एक्स एक्सिस के अलग काम कर रहे हैं. बहुत सारा लोग, नो प्रॉब्लम. दीज आर एक्चुअली यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड एक्टिंग फ्रॉम लेफ्ट टू राइट साइड. सो सपोज कोई भी चार्ज पार्टिकल जो मैग्नेटिक फील्ड के अलग चल रहा था, ठीक है, पैरेलल टू द फील्ड. दैट मीन्स इसका जो इनिशियल वेलोसिटी होगा v एंड v के बीच एंगल कितना है, 0 डिग्री होगा. थीटा इक्वल टू 0 डिग्री. In this case, if we are applying this F equal to Q B cross B, okay, it is actually a basic relationship between magnetic force, velocity, and magnetic field, okay, on the charged particle. So in previous lecture we have finished this one. So let's see. So now if it is this part, then it will be Q B B sin theta according to vector form. Okay. So now अगर तुम थीटा का वैल्यू 0 डिग्री इनपुट करोगे, देन इसका वैल्यू क्या आएगा, क्यू वी बी इंटू 0, देन इट विल बिकम 0. दैट मीन्स कोई भी चार्ज पार्टिकल अगर मैग्नेटिक फील्ड के अलोंग चलता है, दैट मीन्स उसका जो मतलब वेलोसिटी होगा, स्पीड होगा, वो कॉन्स्टेंटली मतलब मैग्नेटिक फील्ड के अलोंग ही चलता रहेगा. मतलब उसका अंतर जो एक्स्ट्रा मैग्नेटिक फोर्स का जो एक्शन होता है वो 0 है. ठीक है, practically it is becomes 0. So now तुम लोग क्या लिखोगे इधर आंसर का जो सोल्यूशन होगा, सोल्यूशन के अंदर क्या लिखोगे. दैट मीन्स so whenever any charged particle entering to the magnetic field along the field, and then there will be no extra magnetic force acting on the charged particle. That means it will move along
the magnetic field direction. Okay, that's it. So second topic is parallel to the field. Okay, it is parallel to the field, this one. Okay, let's start. uh, Suppose magnetic field is acting perpendicularly with respect to plane of paper into the plane of paper. So cross and circle, these are actually universal sign. Cross and circle indicates means magnetic field is acting into the plane of paper. Okay, into the plane of paper. तो कोई भी एक चार्ज पार्टिकल अगर मैग्नेटिक फील्ड में एंटर करेगा लाइक दिस, ओके, दैट मीन्स ये तो देखो मतलब अलोंग इनटू और आउटवर्ड डायरेक्शन विद रिस्पेक्ट टू प्लेन ऑफ पेपर, दैट मीन्स जो चार्ज पार्टिकल का डायरेक्शन होता है वो एक्चुअली 90 डिग्री, ठीक है, 90 डिग्री। सो देखो सपोज ये तो एक्स एक्सिस ड्रॉ किया, ये वाई एक्सिस ड्रॉ किया, तो z एक्सिस, ठीक है। Since so I am doing this one with a 2D plane, so we need to imagine this another third axis into or outward with respect to plane of paper, okay, that axis. So now suppose x axis के along तो चार्ज पार्टिकल को इंडिकेट किया v को, and y axis के along तो मैग्नेटिक फील्ड को इंडिकेट किया, then and along z axis it will be magnetic force, okay. So ये तो actually Fleming's left hand इसमें भी बोल दिया. That means according to Fleming's left hand rules, suppose it is our forefinger, middle finger and thumb, okay. If you show this forefinger along the magnetic field direction and this middle one along the speed of velocity direction of charge particle, then this thumb will show us force acting on the charge particle, okay. So now let's see what will happen here. अगर कोई भी चार्ज पार्टिकल मैग्नेटिक फील्ड में एंटर करेगा बाय मेकिंग परपेंडिकुलरली, ओके, देन इसका जो पाथ जो मतलब पाथ होता है वो एक्चुअली यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन में ये घूमते रहेगा, ठीक है, ऐसा करके आता है। देन आफ्टर एंटरिंग टू द मैग्नेटिक फील्ड इट विल गेट डिफ्लेक्टेड साइड अवे बाय द मैग्नेटिक फोर्स, ओके। दैट मीन्स इधर एक सर्कुलर मोशन कंप्लीट होगा, ठीक है। एक्चुअली इसका जो वेलोसिटी होता है, वेलोसिटी सपोज ये पार्टिकल इधर आके पहुंचा, ठीक है, तो इसका जो वेलोसिटी होगा वो टेंजेंशियली एक्टिंग इन दिस डायरेक्शन, दैट मीन्स इस पॉइंट से लेकर इधर तक जो डिस्टेंस है जो रेडियस है, रेडियस, दैट मीन्स ये पार्टिकल यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन में घूमते रहेगा विथ कांस्टेंट स्पीड। सो वी नो दैट सो व्हेनेवर इन पार्टिकल मूविंग अलोंग यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन, ओके, uniform circular path, then it will execute what centripetal force, okay. That means इधर centripetal force आ जाते हैं जो जो एक्चुअली मैग्नेटिक फोर्स डेवलप कर रही है इसको सेंट्रीपिटल फोर्स में आने के लिए, ठीक है। दैट मीन्स ये पार्टिकल यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन में घूमते रहेगा, ठीक है। सो एज यू नो दैट द मैग्नेटिक फोर्स F is equal to QVB sin theta. Now theta is what? Theta is 90 डिग्री ना, 90 डिग्री होता है, थीटा 90 डिग्री हो जाएगा, दैट मीन्स साइन 90 का वैल्यू 1 है, सो इट विल बी QVB 1, दैट मीन्स QVB, ये भी इज इक्वेशन नंबर 1। सो नाउ so what is the expression of centripetal acceleration? Centripetal acceleration, it was A equal to B square by R. The centripetal force F suffix C equal to mass into centripetal acceleration, it will be m square by R, okay, very simple, okay, it is R, okay. So now what will happen here? This magnetic force B F, this magnetic force F will develop the centripetal force, okay. That means it will be balanced with each other for moving it along this uniform circular path. So now F का वैल्यू क्या है? QVB is equal to FC का वैल्यू क्या मिला? mb square by r, okay, is mb square by r, okay। इधर से तुम रेडियस मतलब निकल सकते हो, रेडियस का वैल्यू देखो, इससे भी एक डिफरेंशियल है, दैट मीन्स इधर से रेडियस r इज इक्वल टू
m v upon q b. Okay, so this is our expression of radius. देखो radius is depends on speed of चार्ज पार्टिकल. ओके, चार्ज पार्टिकल कितना स्पीड से घूम रहा है तो इसके ऊपर डिपेंड करता है. ठीक है, दैट मीन्स जो चार्ज पार्टिकल का स्पीड जितना ज़्यादा होगा उसका जो सर्कुलर पाथ होगा वो बहुत ही ग्रेटर होगा. ठीक है, मतलब रेडियस बहुत ही बड़ा हो जाता है. सो दैट मीन्स इसको इंडिकेट करता है. जिसका रेडियस बहुत छोटा होता है वो वाला चार्ज पार्टिकल उतना धीरे से घूमेगा. ठीक है, स्लोली. So from this expression we can find out the time period, मतलब period of revolution, मतलब कितना टाइम लगेगा पर घूमने के लिए, and then also frequency you can find out. Okay, इधर मैं देख रहा हूँ. देखो so just write down time period. Okay, time period. Time period indicated by capital T. Achha. So now, as we know that time period T equal to what? Time period T equal to what? Time period T equal to 2 pi r by v. Time period, how time period depends on linear velocity? It is 2 pi r by v. कैसा आया देखो, क्लास 11 में ऑलरेडी सीख लिया था तुम लोग. क्लास 11 में क्या सीखा? v इक्वल टू ओमेगा आर एक रिलेशनशिप सीखा इन रोटेशनल मैकेनिक्स. सो v इक्वल टू ओमेगा आर ये था. एंड देन और एक सीखा जो ओमेगा था, ओमेगा इक्वल टू 2 पाई बाई टी. टू कंप्लीट वन रिवोल्यूशन, जितना टाइम लगता है उसको बोलते हैं टाइम पीरियड टी. ठीक है, तो ना ये पूरा कंप्लीट करने के लिए सर्कुलर पाथ को कितना डिग्री घूमना पड़ेगा? एंगुलर डिस्प्लेसमेंट 2 पाई होता है. तो एंगुलर डिस्प्लेसमेंट अपन टोटल टाइम, इट इज कॉल्ड व्हाट? एंगुलर वेलोसिटी. सो नाउ इनपुट करो वैल्यू को इधर. तुम देखो इधर से ओमेगा इक्वल टू क्या मिलेगा? ओमेगा इक्वल टू वी बाई आर मिलेगा ना, कि वी बाई आर इधर इनपुट करो. वी बाई आर इज इक्वल टू 2 पाई बाई टी. इधर से अगर तुम कैलकुलेशन करोगे तो तुम्हें क्या मिलेगा? तो हम इधर से टी मिल जाएगा. टी इक्वल टू 2 पाई आर बाई वी मिला ना. ये क्लास 11 का टॉपिक था, थोड़ा सा रिकेप कर दिया. जस्ट सी नाउ आर का वैल्यू इनपुट करो, देन विल गेट टाइम पीरियड बाई वी मल्टीप्लाइड बाई आर का वैल्यू एम वी अपन क्यू बी. ओके, इधर से बी से बी कैंसिल हो जाता है. देन इट विल बी 2 पाई एम बाई क्यू. ओके, सो इट इज आवर बेसिक एक्सप्रेशन ऑफ टाइम पीरियड. ओके, कितना टाइम लगता है ये एक बार घूमने के लिए? वो चार्ज पार्टिकल जो मैग्नेटिक फील्ड में परपेंडिकुलरली एंटर किया, वो एक बार रिवोल्यूशन करने के लिए कितना टाइम लगता है? इसका डिपेंडेंसी क्या है? 2 पाई एम बाई क्यू बी. दैट मीन्स इसका जो टाइम पीरियड होता है इट इज डिपेंड्स ऑन मास ऑफ द पार्टिकल. इट इज़ नॉट डिपेंड्स ऑन इट्स स्पीड. ओके, रेडियस इसके ऊपर डिपेंड नहीं करता. ये कितना स्पीड से एंटर किया, कितना रेडियस में घूम रही है, ठीक है, उसके ऊपर डिपेंड नहीं करेगा. इट इज डिपेंड्स ऑन ओनली मास द चार्ज पार्टिकल. ओके, so if we have a time period then we can get also frequency. कितना फ्रीक्वेंसी लगते है? फ्रीक्वेंसी मीन्स व्हाट? टू कंप्लीट वन रिवोल्यूशन कितना टाइम लगता है उसको बोलते हैं फ्रीक्वेंसी. ओके, नॉट फ्रीक्वेंसी, उसको बोलते हैं टाइम पीरियड. तो फ्रीक्वेंसी क्या था? फ्रीक्वेंसी मीन्स इन 1 सेकेंड टोटल नंबर ऑफ रिवोल्यूशन इज कॉल्ड फ्रीक्वेंसी. एक सेकेंड में कितना घूम सकते हैं. तो लेट्स स्टार्ट. सो और एक टॉपिक है फ्रीक्वेंसी का टॉपिक. फ्रीक्वेंसी को कैसे शो करें? इधर दिखा रहा हूँ, देखो फ्रीक्वेंसी इंडिकेटेड बाय एफ. ओके, फ्रीक्वेंसी एंड टाइम पीरियड के बीच एक रिलेशनशिप था. ये तो क्लास 10 से मिल रही तुम लोगों को. सो ये रेसिप्रोकल ऑफ टाइम पीरियड. ओके,
सो इसको जब रेसिप्रोकल कर दोगे इस वैल्यू को, देन इट विल बी क्यू बी अपन 2πm. ओके, इट इज द value of frequency. Okay, value of frequency. Okay, अच्छा, written everyone. So it is actually our second part ना कि second part जो था अगर एक चार्ज पार्टिकल परपेंडिकुलरली एंटर करते हैं तो इसके लिए उसका वैल्यू क्या होगा, मतलब मैग्नेटिक फोर्स का वैल्यू क्या होगा, ठीक है, सब करना पड़ेगा. अच्छा, सुनो इसको थोड़ा इरेज करता हूँ, ठीक है, इस पेज में लिख रहा हूँ. अच्छा, so actually I need this new page. So now number 3 देखो, at any arbitrary angle to the field. जब वो जो चार्ज पार्टिकल था, चार्ज पार्टिकल की इनिशियल वेलोसिटी अगर मैग्नेटिक फील्ड के साथ कोई भी एंगल करके एंटर करते हैं तो इसके लिए उसके ऊपर मैग्नेटिक फोर्स एक्सप्रेशन क्या है, टाइम पीरियड क्या है, एंड फ्रीक्वेंसी भी क्या है, उसका मतलब जो पाथ होता है, ठीक है, मतलब कौन सा पाथ में ये मूव करता है वो भी हम लोग देखेंगे, ठीक है. जस्ट सी, सो नाउ नंबर 3. अभी सॉल्यूशन करो नंबर 3. चार्ज पार्टिकल जब कोई भी आर्बिट्रेरी एंगल करके एंटर करते हैं मैग्नेटिक फील्ड में, तब इसका नेचर क्या होगा. सपोज वी हैव मैग्नेटिक फील्ड along x axis, and these are actually mutual perpendicular axis. Okay, mutual perpendicular axis, it is actually perpendicular, ठीक है, ये perpendicular. Suppose it is x axis, it is y axis, it is z axis. तो चार्ज पार्टिकल है, चार्ज पार्टिकल क्या किया मैग्नेटिक फील्ड में, तो मैग्नेटिक फील्ड along x axis काम कर रहे हैं, इधर काम कर रहा है, इस डिस्क पे काम कर रहा है, ठीक है, इधर मैग्नेटिक फील्ड काम कर रहा है. तो जो चार्ज पार्टिकल है ये कोई भी इनिशियल वेलोसिटी भी लेके बाय मेकिंग एनी एंगल मैग्नेटिक फील्ड में एंटर किया. सो मैग्नेटिक फील्ड में जब एंटर करते हैं इसका वेलोसिटी तो भी है, ठीक है, इसका अभी देखो वेलोसिटी का कंपोनेंट इंडिकेटर देखो, एक हो जाएगा along the x axis it will be parallel to the field, along the field it will be b cos theta ना, b cos theta, and perpendicular to the field it will be say b perpendicular, sin से इंडिकेट किया, it is b sin theta. Okay, so obviously you can see for b cos theta component of velocity, so there will be no magnetic force. Okay, और जब पैरेलल में एंटर करेगा तो मैग्नेटिक फोर्स जीरो करता है. दैट मीन्स ये b cos theta वेलोसिटी लेके कांस्टेंट वेलोसिटी लेके along the field चलते रहेगा, along the field चलते रहेगा, ठीक है. सपोज दिस इज द डायरेक्शन ऑफ फील्ड, दिस इज द डायरेक्शन ऑफ फील्ड, इधर चलते रहेगा. और जो b sin theta कंपोनेंट है और एक कंपोनेंट है ना, इधर देखो जो परपेंडिकुलर कंपोनेंट है b sin theta कंपोनेंट के लिए वो पार्टिकल में और भी मतलब चेंजिंग आ जाते हैं, ठीक है. सो ये जो b sin theta कंपोनेंट है इसके लिए इसके ऊपर मैग्नेटिक फोर्स काम करेगा क्योंकि इट इज एक्टिंग परपेंडिकुलरली, ओके. So let's see this velocity will be divided into two component. Okay, one will be b cos theta, another will be b sin theta. ना कि और जो b sin theta component है ये b perpendicular लिया और जो b cos theta component है ये b parallel लिया. ओके, ये सिंबल. now जब ये b sin theta component के लिए अप्लाई करूँगा तो इसके लिए जो मैग्नेटिक फोर्स का एक्सप्रेशन आते हैं, मैग्नेटिक फोर्स एक्सप्रेशन क्या होगा, तो मैग्नेटिक फोर्स लिखो F इक्वल टू क्यू भी परपेंडिकुलर एंड साइन 90 डिग्री. ओके, मतलब जो भी है देखो b परपेंडिकुलर लाइन
एंड बी मैग्नेटिक फील्ड ए, इस दोनों के बीच फिर भी 90 डिग्री एंगल में, देखो फिर से 90 डिग्री एंगल मिल गया, तो ये हो जाएगा क्यू बी परपेंडिकुलर बी, दैट मीन्स इट इज द डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फोर्स acting on charged particle. Okay, whenever it is entering by making any angle in the field. So now what is the expression of r? r का एक्सप्रेशन क्या था? देखता हूँ r का एक्सप्रेशन क्या था। देखो इन प्रीवियस पार्ट वी हैव डिस्कस अबाउट r, ना कि क्या था? r इक्वल टू एम बी बाई क्यू बी, ना कि r इक्वल टू एम बी बाई क्यू बी। इधर आपका वैल्यू पुट करो, r equal to m by q, b is what? b will be b perpendicular, so it is m b perpendicular का वैल्यू क्या है? देखो इधर b perpendicular means b sin theta, m b sin theta multiplied by magnetic field divided by q, okay? So magnetic field ये इसका okay? एम भी परपेंडिकुलर का वैल्यू भी sin theta बाई क्यू भी आ जाएगा। सो ना टाइम पीरियड क्या आ जाएगा? पीरियड ऑफ रिवोल्यूशन जो है टाइम पीरियड इक्वल टू नो दैट 2 पाई आर बाई बी, बी मीन्स हियर बी परपेंडिकुलर, ओके? सो इट इज 2 पाई, आर का वैल्यू इंक्लूड करो और बी परपेंडिकुलर का वैल्यू क्या था? बी sin थीटा, एंड देन आर का वैल्यू सी एम बी sin थीटा अपॉन क्यू बी। ये बी sin थीटा दोनों एक दूसरे को कैंसिल करता है, सो इट विल बी 2 पाई एम बाई क्यू बी। So again we can get this time period. So what is the value of time period? By using this phenomenon we can get 2 pi m by qb. Okay, so it is the value of time period. So now नेक्स्ट पर देखो फ्रीक्वेंसी भी मिल जाएगा, ठीक है? फ्रीक्वेंसी क्या है? फ्रीक्वेंसी इज रेसिप्रोकल ऑफ टाइम पीरियड, इट विल बी यू बी बाय 2 पाई एम, ओके? इज द एक्सप्रेशन ऑफ फ्रीक्वेंसी। दिस फ्रीक्वेंसी इज कॉल्ड साइक्लोट्रॉन फ्रीक्वेंसी, ओके? तो इसको साइक्लोट्रॉन फ्रीक्वेंसी नाम दिया। साइक्लोट्रॉन फ्रीक्वेंसी क्या है? एक्चुअली जो हाई एनर्जी पार्टिकल होता है उसको मतलब स्पीड देने के लिए, ज़्यादा स्पीड देने के लिए क्यों चाहिए? एक्चुअली पार्टिकल से क्या करते हैं, जब कोई भी है क्रिस्टल को तुम बॉम्बार्डिंग करने जा रहे हो, स्ट्राइक करने जा रहे हो टारगेट न्यूक्लियस को, तो हमें उसको स्पीड देना है पार्टिकल को। तो उस पार्टिकल को स्पीड देने के लिए उधर एक साइक्लोट्रॉन मशीन रहता है, ठीक है? साइक्लोट्रॉन मशीन में दो डी शेप ऐसा करके रहता है, इधर मशीन में रहता है ये। एक्चुअली जब पार्टिकल ऐसा करके घूमता है देन ये टारगेट न्यूक्लियस में स्ट्राइक कर लेगा, ठीक है? ये स्पीड देने के लिए तो इधर उसको साइक्लोट्रॉन मशीन में डालना चाहिए, ठीक है? तो देन इधर जो फ्रीक्वेंसी आता है उसको साइक्लोट्रॉन फ्रीक्वेंसी डाल दिया, एफ सफिक्स सी इंडिकेट किया, ठीक है? तो एफ सफिक्स सी, तो ठीक है। सो नाउ इधर और एक इम्पोर्टेंट पार्ट है, वो इम्पोर्टेंट पार्ट क्या है? तो ये जो क्या हुआ, अच्छा इसको थोड़ा एडजस्ट करता हूँ। सो नाउ जो पार्टिकल इधर मिला, तो ये वाला पार्टिकल ये एक्चुअली कौन सा पाथ फॉलो करते हैं? देखो इधर परपेंडिकुलरली बी sin थीटा कंपोनेंट है वेलोसिटी का, एंड बी cos थीटा भी कंपोनेंट है। बी cos थीटा के लिए ये अलोंग द एक्सिस चलते हैं और बी परपेंडिकुलर के लिए ये अलोंग द वाई एक्सिस एक फोर्स फील करते हैं। दैट मीन्स इस दोनों का कॉम्बिनेशन में ये वाला ऑब्जेक्ट का जो पार्टिकल था, पार्टिकल का जो पाथ होता है, घूमने का पाथ ये ऐसा हो जाता है, इसको बोलता है हेलिकल पाथ। ओके, स्पाइरली ये घूमते रहेगा, ठीक है? ऐसा करके तो वो ऑब्जेक्ट इधर से सब स्टार्ट किया घूमना, ठीक है? इधर से अगर घूमेगा ऐसा करके यहाँ तक, ये जब हो गया जो टाइम पीरियड मिला लीनियरली इसका डिस्प्लेसमेंट भी हुआ। इसका एक रिवोल्यूशन करने के लिए लीनियरली अलोंग द एक्स एक्सिस द फील्ड जितना डिस्टेंस ट्रेवल करता है उसको बोलते हैं पिच, ओके? इसको बोलते हैं पिच। अभी इसका जो पाथ होता है घूमने का पाथ, ये हेलिकल फॉर्म कर लिया, ठीक है? हेलिकल स्पाइरल, ओके? सो इसको थोड़ा नीचे जाके इधर देखो, इधर मैं फिर से कर रहा हूँ
ये जो ऑब्जेक्ट पार्टिकल था ये अलॉन्ग द फील्ड जो एक्स एक्सिस में मैंने लिया था ऐसा करके घूमते हैं ना कि ऐसा करके घूमते हैं ड्यू टू बी पैरेलल एंड बी परपेंडिकुलर अलॉन्ग दिस ओके बी परपेंडिकुलर। तो अभी इसका पिच कैसे निकालना, ठीक है। पिच 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 क्या है? इट इज़ ए linear distance traveled by this object whenever it is completing one revolution, then along the x-axis there will be one linear distance, okay। linear distance अब इधर से ये स्टार्ट किया ना, इधर से जब ये पूरा ये तमेगा इसका टाइम पीरियड आ जाते हैं टी, ओके। मतलब एक सर्कल घूमने के लिए जितना टाइम लगता है उसको बोलते हैं टाइम पीरियड टी, ठीक है। वही है। सो pitch equal to distance equal to velocity or speed multiplied by what? Time period, okay। क्योंकि velocity equal to what? Distance by time ना, तो distance equal to velocity into time, तो it will be which velocity component? b parallel, okay। along the magnetic field जो velocity है इसके लिए इसका जो मतलब linear displacement हो रहा है, ठीक है। now it will be b parallel क्या था? b cos थीटा इंटू टी का वैल्यू इनपुट करो, टी इक्वल टू क्या था? टी इक्वल टू था 2 पाई m बाई क्यू बी इंटू बी कॉस थीटा, ओके। ये हो गया उसका पिच मेजरमेंट, ओके। पिच टी, आई थिंक इट इज़ वेरी क्लियर ऑल ऑफ यू। सो गुड नाइट, रेस्ट ऑफ ड्रीम्स, ओके। थैंक यू, इधर खत्म करता हूँ। अगर किसी को कोई प्रॉब्लम होगा तो तुम लोग कमेंट बॉक्स में जरूर बताना, ठीक है। गुड नाइट।